سندھ والے ہو جائیں تیار، کل سے ہوگی مونسون کی برسات۔ کراچی، تھرپارکر، بدین، ٹھٹہ اور حیدرآباد میں 8 جولائی تک موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، ٹھٹہ، بدین، حیدرآباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا۔ سندھ حکومت اور بلدیاتی اداروں نے نالوں کی صفائی سمیت کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے۔ ادھر چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے نالوں کی صفائی کے لیے ورلڈ بینک کے پروگرام پر سوالات اٹھا دیے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے کہ الیکٹرک کا عذاب، شہر قائد والوں کا جینا ہو گیا محال۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہیں آ سکا، بجلی گھنٹوں بند رہنے سے قرنطینہ ہونے والے مریض دوہری اذیت کا شکار۔ اوور بلنگ، سونے پہ سہاگا والا کام کرنے لگی۔ ادھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کراچی کے بجلی کے نظام کے لیے کوئی اور راہیں سوچنی ہیں۔ وفاق سے، خاص طور پہ وزیر سے، عمر ایوب صاحب سے یہ مناپلی سچویشن کراچی کے اوپر کے الیکٹرک کی ختم کی جائے۔ کراچی میں ایک دوسری کمپنی لائی جائے مقابلے پہ کے الیکٹرک کے۔ کل سے ان کی کراچی کو اندھیرے میں ڈھکیلنے کے خلاف 3 بجے سے 5 بجے تک ہم یہاں دھرنا دیا کریں گے۔ پی ٹی آئی سندھ کا وفاق سے کہ الیکٹرک ختم کرنے اور نئی کمپنی لانے کا مطالبہ۔ فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کے پاس نیشنل گریڈ سے پاور لینے کی سکت ہی نہیں۔ ایم این اے آفتاب صدیقی بولے فرنس آئل اور گیس کی کمی دور کر دی کہ الیکٹرک والے پھر بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ کل سے روزانہ کے الیکٹرک آفس کے باہر 2 گھنٹے علامتی دھرنا دینے کا اعلان۔ مہنگائی کے مارے عوام کا نیا غم، نان بائیوں نے بھی گرا دیا بم۔ پنجاب میں نان 15 روپے اور روٹی 8 روپے کی ہو گئی۔ نان بائیوں نے انتظامیہ سے مذاکرات ناکام ہوتے ہی قیمتیں از خود بڑھا دی۔ حکومتی مشینری قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل بے بس۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی آٹے کا 20 کلو تھیلا مزید 100 روپے مہنگا۔ فائن آٹا 1150 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہباز شریف کورونا کو شکست دے کر صحت یاب، ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے تصدیق کر دی۔ کہتی ہیں ڈاکٹرز نے 3 ہفتے تک اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروانے اور تب تک سخت احتیاط جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی شہباز شریف کو صحت یاب ہونے پر مبارکباد، کہا اب عملی دنیا میں قدم رکھیں اور اپنی لازوال اور شاندار کرپشن کی تفتیش میں تعاون کریں۔ -1 ہمارا مطالبہ نہیں، پی ٹی آئی کی اندرونی خواہش ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے دھاندلی کی حکومت جائے، فی الفور الیکشن کروائے جائیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر کی 92 نیوز سے گفتگو۔ مزید بولے کہ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جلد بڑا رد عمل آنے والا ہے۔ حکومت ملک سے کرپشن، مہنگائی اور دیگر مسائل کو مائنس کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی گفتگو۔ مزید بولے کہ حکومت کو پارٹی کے اندر کوئی مسئلہ ہے، نہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ۔ اپوزیشن ہر معاملے میں روڑے اٹکانے کی عادت ختم کرے اور صبر کے ساتھ عام انتخابات کا انتظار کرے۔ کورونا کے باعث پنجاب میں 48 ڈاکٹرز نے نوکری چھوڑ دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سب سے زیادہ میو اسپتال لاہور کے 14 ڈاکٹر شامل۔ جنا اسپتال کے ساتھ چلڈرن اسپتال کے 6 ڈاکٹرز نے ملازمت چھوڑی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ریسکیو 1122 کے عملے کے لیے کورونا الاؤنس کی منظوری دے دی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 3191 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مریضوں کی تعداد 2,28,274 ہو گئی۔ ملک میں ایک روز کے دوران 4,736 مریضوں نے کورونا کو شکست دے دی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا ٹیسٹنگ میں خطرناک حد تک کمی۔
ذرائع کے مطابق ایک ہفتے میں سیمپلز دینے میں 40% کمی ہوئی۔ یومیہ ٹیسٹ کی تعداد 3000 سے کم ہو کر 1700 رہ گئی۔ صوبائی حکومت نے مثبت کیسز میں کمی کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نتیجہ قرار دے کر جان چھڑا لی۔ M8 منصوبے پر ترجیحی بنیادوں پر کام شروع کر دیا۔ چیئرمین سی پیک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ، کہا CDWP کی جانب سے 146 کلومیٹر طویل شاہراہ کی تعمیر کی منظوری لی گئی ہے۔ ہوشاب سے آبارام تک شاہراہ کے منصوبے پر 26 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق ماسٹر مائنڈ سلمان سمیت 2 دہشت گردوں نے اسمارٹ فون ملے ہیں۔ فونز کی فورینسک رپورٹ کے مطابق حملہ آور بلوچستان سے کراچی میں ایک نمبر پر مسلسل رابطے میں تھے۔ مطلوبہ نمبر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں استعمال ہوا۔ جامشورو میں لڑکی وزیرہ چچر کے قاتل کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے کیس میں مطلوب لڑکی کے شوہر علی بخش اور دیور کریم بخش کو گرفتار کر لیا۔ چند روز قبل انڈس ہائی وے چچر سٹاپ کے قریب 24 سالہ وزیرہ کی لاش ملی تھی۔ عبداللہ المری وزیر معیشت اور سلطان الجبیر وزیر صنعت ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المختوم کا کہنا ہے کہ پلان کے تحت 50% سرکاری سروسز سینٹرز کو 2 سال میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اور بچے بڑے سبھی رسیلے آموں کے رسیا، گرمیوں کی سوغات، ذائقے کی کیا ہی بات۔ اسلام آباد کے نجی شاپنگ مال میں لگے اسٹال پر آم ہی آم، چونسا، لنگڑا، سندھڑی، انبر رٹول، دسہری، ملائکہ اور شان خدا سمیت ہر قسم کا آم خوش ذائقہ اور لذیذ۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں اشال سلیمان۔ اس بلیٹن سے میں ہوں رخشان میر اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ عرفان۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ہر دھرم انتہا پسند مودی سرکار اور قابض بھارتی فورسز باز نہیں آئیں۔ بھارتی افواج کی ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کے خلاف ورزی۔ ISPR کے مطابق بھارتی افواج نے بھاری ہتھیاروں اور مارٹر گولوں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 22 سالہ شہری زخمی ہو گیا۔ جی ہاں، بھارتی فوج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل رضا سے۔ فیصل، یہ بزدل فوج ایک کے بعد ایک غلطی دہرا رہی ہے، افواج پاکستان کی جانب سے کیسا جواب دیا گیا؟ جی بالکل، درم انتہا پسند مودی سرکار اور قابض بھارتی فورسز جو ہیں وہ باز نہیں آ رہی۔ بھارتی فورسز نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی جو ہے وہ بدستور جاری رکھی ہوئی ہے۔ بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے بٹل سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے رات گئے جان بوجھ کر معصوم شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فورسز کا آبادی پر مارٹرز اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال، بھارتی فورسز کی شدید فائرنگ سے 22 سالہ شہری جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ پاک فوج نے دشمن کو بھرپور منہ توڑ جواب دیا اور شہری آبادی پر فائرنگ کرنے والی بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ جی ٹھیک ہے، منہ توڑ جواب دیا گیا ہے بزدل فوج کو۔ فیصل رضا، شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اور سندھ والے ہو جائیں تیار کیونکہ کل سے ہوگی مونسون کی برسات۔ کراچی، تھرپارکر، بدین، ٹھٹھا اور حیدرآباد میں 8 جولائی تک موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، ٹھٹھا، بدین، حیدرآباد اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی یہاں پر ظاہر کر دیا ہے۔ سندھ حکومت اور بلدیاتی اداروں نے نالوں کی صفائی سمیت کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے ہیں۔ ادھر چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے ورلڈ بینک کے پروگرام پر سوالات بھی اٹھا دیے ہیں۔ کراچی میں کل سے مانسون کا پہلا سپیل شروع ہو رہا ہے۔
जो 2 जून तक जारी रहेगा और अर्बन फ्लड की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। जबकि मौसम का हाल बताने वाले ये कहते हैं कि सीजन की पहली बारिश 30 से 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा सकती है और दूसरी जानिब महकमे बल्दियात की जानिब से नालों की सफाई शुरू नहीं की गई है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बदलते मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करते चले कि सिंध वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि कल से मॉनसून की बरसात शुरू होने जा रही है। कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा और हैदराबाद में 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें जारी रहेंगी। जी हाँ, और ख़बर तो ये भी है कि महकमे मौसमियात ने इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी जाहिर कर दिया है। कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों ने नालों की सफाई समेत अभी तक कोई भी हिफाजती इंतजामात नहीं किए। दूसरी जानिब चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम पर सवालात भी उठा दिए हैं। कहाँ है इंतजामिया, कहाँ है सिंध हुकूमत? इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया जा रहा है। सिंध में गर्मी का जोर टूटने का इम्कान। मानसून बारिशों का पहला स्पेल पीर से रंग जमाएगा। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, सांगड़, मीरपुर खास और दीगर शहरों में 8 जुलाई तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लड आने का इम्कान। मानसून सीजन सर पर आने के बावजूद कराची के छोटे बड़े नालों की सफाई नहीं की जा सकी। नॉर्थ नाज़माबाद गुज्जर नाले में कचरे के ढेर लगे हैं। 1-2 दिन में बारिश आने वाली है जो बोला है महकमे मौसमियात ने, और अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ओवरफ्लो होगा तो किस हद तक कराची वाले मुतासिर होंगे। वो सब यही लॉलीपॉप देते हैं कि हम ये करेंगे करने से कोरोना तो आ गया, लेकिन ये लोग नहीं आए हैं। नुसरत सहर अब्बासी ने सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। इनका तो सारा सिस्टम अपना पहले ही काम करना शुरू कर देना चाहिए था। मशीनरी अपना सिस्टम कर रही होती, क्योंकि कोई वाली वारिस नहीं है कराची का। कराची यतीम है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मराद तो लेंगे, चूसेंगे, निचोड़ेंगे कराची को। कराची का इंतजाम किसके हाथ में दें? जिला वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी ने वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली इमदाद पर सवाल उठा दिया। वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है क्लिक प्रोग्राम और स्विफ्ट प्रोग्राम के जरिए। सिंध हुकूमत नहीं कर रही थी, कोई मसला नहीं। आपको जो वर्ल्ड बैंक ने किया था और जिसको आपने शुरू करना था, वो प्रोग्राम कल जाकर परसों जाकर शुरू हुआ है, पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? शहरी कहते हैं महकमा बल्दियात और शहरी हुकूमत की जानिब से नालों की सफाई के दावे के बावजूद अमली इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़, कराची। कराची में मानसून बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। न्यू कराची, गुलबहार और लियाकताबाद के इलाके मुतासिर होने का खतरा है। मंजूर नाला ओवरफ्लो होने से एतराफ़ के इलाके भी मुतासिर हो सकते हैं। मलीर नदी में तुगयानी से कोरंगी और क्यूमाबाद के इलाके भी मुतासिर होने का खदशा है। नॉर्थ नाज़माबाद और महमूदाबाद भी अर्बन फ्लड से मुतासिर हो सकते हैं। अजीज़ भट्टी, पहलवान गोट, औरंगी टाउन, अजीमपुरा, गोल्डन टाउन, आजम बस्ती, मोचकू, शेरशाह और सोल्जर बाजार के इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे फयाज यूनुस से। फयाज हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, मानसून बारिशों के दौरान शहर भर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, इससे बचाव के लिए क्या कोई इंतजामात किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल मानसून सीज़न आने वाला है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर गुज्जर नालों की सफाई का काम ताहाल तेज़ नहीं किया जा सका। महकमा मौसमियात कहता है कि इस बार जो है मौसम सरमा की बारिश ज़्यादा होगी। अर्बन फ्लडिंग के बायस महमूदाबाद, इसके अतराफ़ के इलाकों में ताहाल हम देख रहे हैं कि जो नकासी का काम है उसको तेज़ नहीं किया जा सका। अगर ये बारिश हो जाती है और अर्बन फ्लड आ जाता है तो इससे जो अतराफ़ के इलाके हैं वो शदीद मुतासिर हो सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बताया जा रहा है कि जहाँ बारिश अगर ज़्यादा हुई तो ये पानी जो बरसाती नालों से निकल कर घरों में दाखिल हो सकता है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि महमूदाबाद, इसके साथ नॉर्थ नाज़माबाद का गुज्जर नाला, औरंगी टाउन, कुरंगी, नाज़माबाद, बफर जोन, फेडरल बी एरिया और मलीर नदी के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें तुगयानी आ सकती है। ताहाल बल्दियाती इदारों के साथ साथ कमिश्नर कराची और मेयर कराची की जानिब से अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इन बरसाती नालों की सफाई का काम तेज़ नहीं किया जा सका, जिनकी वजह से शहरी परेशान है। उनका कहना है कि जल्द अज जल्द इन तमाम तर नालों को साफ़ किया जा सके ताकि जो खतरे की घंटी इनके सरों पर मंडला रही है वो जल्द अज जल्द टल सके। जी सही, अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया फयाज हमें आगाह करने के लिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में नालों से कचरा निकालने का सिलसिला भी जारी है। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख का कहना है कि कचरा बरसाती नालों से निकालकर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। मरकजी बरसाती नालों समेत DMCs के ज़ेर एहतमाम नालों पर भी अमला मुस्तकिल तैनात है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा किरण खान से। किरण खान, कहा तो जा रहा है कि काम हो रहा है, क्या वाकई में हो रहा है या फिर सिर्फ दावे हैं? जी, ये जो कहा जा रहा है कि काम हो रहा है, ये बहुत पहले कहा जाना चाहिए था। अब जबकि मॉनसून का सीजन आज रात से शुरू हो रहा है, पहला आगाज हो जाएगा बारिशों का। हमने देखा कि 2 दिन कबल ये काम का आगाज किया गया। कराची के 38 बड़े नाले हैं, 500 से जायद इसके छोटे मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो नाले मौजूद हैं। लेकिन अगर ये 2 दिन पहले काम शुरू हुआ है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह ये काम किया जा रहा होगा और कितनी सफाई मुमकिन हो सकेगी। 2 साल से नालों की कोई सफाई नहीं हुई थी। हमने देखा कि कचरा इस तरह नालों में भरा हुआ है कि वहाँ पर लोग उस पर पैदल चलते हैं और वो कुछ भी नहीं होता उन्हें, और वहाँ पे पानी का बहाव है नहीं। जो चोकिंग पॉइंट्स हैं, जो मुख्तलिफ DMCs के चेयरमैन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि चोकिंग पॉइंट्स की उनकी कोशिश सही। किरण खान, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काम पहले शुरू हो जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, शहर कायद के बासियों के लिए कोई एक मसला नहीं है। कराची में बिजली का बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रुक सका और कई इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फयाज यूनुस। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस और बिजली की फराहमी भी कर दी गई, लेकिन शहरियों की जिंदगी ताहाल अजाब बना रखी है और गर्मी में जीना अजाब बना दिया। कराची के शहरियों को रात में सुकून की नींद नसीब नहीं और नए दिन का आगाज घरों के बाहर बैठकर बिजली के इंतजार में करने लगे। शहर कायद में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बना दी गई है, जबकि 100% रिकवरी वाले इलाके में बिजली के बहरान से महफूज नहीं। कराची इलेक्ट्रिक की नाअहली से तंग शहरी भी फट पड़े। सारी रात तड़फते रहते हैं गर्मी में, बत्ती होती नहीं है, हाथों के पंखे जल जल के हम थक जाते हैं। हमारे बस का नहीं, हाथों से कब तक झेलेंगे हम। बिल्कुल लाइट होती नहीं है, 1 घंटे आएगी तो 3 घंटे के लिए जाती है लाइट। हर पूरा बच्चा परेशान है, पूरी रात रोडों पे गुजारते हैं, लाइट ही नहीं होती। अब सारा दिन हम मेहनत मजदूरी करें और शाम को 1 मिनट के लिए भी सुकून नहीं और लाइट होती नहीं है, पसीना बह रहा होता है, जाग रहे होते हैं हम। शहर कायद में गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, लायंस एरिया, रनछोड़ लाइन और औरंगी टाउन में 6 घंटे, जबकि कायदाबाद, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कुरंगी, केमाड़ी और दीगर इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज, कराची। नाजरीन, कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई है। PTI रहनुमाओं का कल से के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर 2 घंटे अलामती धरना देने का ऐलान सामने आया है। के इलेक्ट्रिक की मोनोपली ख़त्म करने और नई कंपनी लाने का मुतालबा भी कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कराची के बिजली निज़ाम के लिए कोई और राहें ढूंढनी ही होंगी। आफ्ताब सिद्दीकी बोले कि ओवर बिलिंग का सिस्टम खत्म और के इलेक्ट्रिक का मुआहिदा पब्लिक किया जाना चाहिए। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई। PTI रहनुमाओं ने के इलेक्ट्रिक को नाकाम इदारा करार दिया और ये मुतालबा किया कि बिजली की फराहमी के लिए मुतबादिल कंपनी लाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हुक्काम को आड़े हाथों लिया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग की वजह बताने में नाकाम है। PTI रहनुमाओं ने के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में दूसरी कंपनी लाने का मुतालबा कर दिया। कंपनी के मामला दुरुस्त नहीं है। कराची के लोग इनके इस रवैये से तंग आ चुके और वक्त आ गया है कि। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने 1 अरब रुपए गवर्नमेंट हमने दिए मार्केटिंग की और ब्रांडिंग के, टूरिज्म के स्टैंडर्ड्स हों और दुनिया भर को ये स्टैंडर्ड्स नज़र आए जैसे बाकी मुल्क ने किया है। हम देख रहे हैं कि टूरिज्म PM साहब की कितनी बड़ी विजन है और हम कितने पीछे थे इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम इसको आगे लेके आए हैं। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड टूरिज्म फोरम भी 2021 में पाकिस्तान में होस्ट होगा। D8 2022 जो पिछले साल मलेशिया ने होस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे 8 मुसलमान मुल्कों ने अग्री किया है कि वो आके पाकिस्तान में 2022 पाकिस्तान पहली दफ़ा होस्ट करेगा ये टूरिज्म का। तो 8 टर्की हो गया, ईरान हो गया,
कतर हो गया, मलेशिया हो गया, टर्की हो गया, ये सारे मुल्क के वज़ीर पाकिस्तान आएंगे, टूरिज़म के वज़ीर पाकिस्तान आएंगे और 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस होगी, समिट होगी, एक्सप्लोर किया जाएगा कि पाकिस्तान को हम कैसे बेहतर कर सकें, स्पेशली हमारे मुस्लिम मुल्कों के साथ। इसके साथ साथ आपको पता है कि PM साहब ने आते साथ ही NOCs भी जो फॉरेनर्स को चाहिए होते थे वो भी ख़त्म कर दिए JK से। तो आप देखेंगे कि ये 46 कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसे आपको 2 साल के अंदर अंदर 46 3 और 4 स्टार होटल्स आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। बरतानिया में दूसरे मरहले में लॉकडाउन नरम होते ही रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी सेंटर और दीगर अवामी मकामात खुल गए हैं। जिंदगी मामूल पर आते ही शहजादा विलियम भी मशरकी लंदन के एक रेस्टोरेंट जा पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक और अमले से गपशप भी की। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया में दूसरे मरहले में लॉकडाउन नरम होते ही रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और दीगर अवामी मकामात खुल गए हैं, जहां शहरी अपने मामूलात सर अंजाम देते दिखाई देते हैं। बरतानवी शहजादा विलियम भी लॉकडाउन नरम होने का लुत्फ उठाने के लिए मशरकी लंदन के एक रेस्टोरेंट जा पहुंचे, जहां रेस्टोरेंट के मालिक एंथोनी गुडरिच और उनके अमले ने शहजादे का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहजादा विलियम ने रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ किए, जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया गया, जहाँ मुलाजमीन और ग्राहकों को कोरोना से बचाने के तमाम हिफाजती इक़दामात पर अमल किया गया था। बाद में शहजादा विलियम ने रेस्टोरेंट के अमले और मालिक के साथ लॉन में बैठकर खूब गपशप लगाई। इस मौके पर समाजी फासले को बरकरार रखते हुए कुर्सियां और मेज फासले पर लगाए गए थे। लॉकडाउन में पाबंदियों के बायस बरतानिया भर में रेस्टोरेंट और होटल्स को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मार्च से बंद होने वाले रेस्टोरेंट और दीगर अवामी मकामात आज से बाकायदा खुल रहे हैं। कई रेस्टोरेंट मालकान की जानिब से न सिर्फ अपने मुलाजमीन को माली तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि मकामी कम्युनिटी और बेघर अफराद की मदद का सिलसिला भी जारी है। बरतानिया में 100 दिनों के लॉकडाउन के बाद जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। बरतानिया भर में इबादत गाहों को खोल दिया गया। 100 रोज बाद हजाम मुयसर आए तो लोग समाजी फासले के साथ लंबी कतारों में इंतजार करते नजर आए। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। मसाजिद में फजर की नमाज अदा की और रब करीम के हजूर सजदा शुक्र अदा किया। इस दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाई गयी, जबकि मसाजिद दोबारा खुलने पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। दूसरी जानिब हेयर ड्रेसर समेत बहुत सारे कारोबार आज दोबारा खोल दिए गए। हजाम खुलने पर मर्दों और खवातीन ने सैलून्स का रुख कर लिया और सूरत हाल मामूल पर आने पर खुशी का इजहार किया। Yeah, I'm happy to get, back to normal, but also just nice to have a haircut. हर चीज़ को वापस नॉर्मल होना चाहिए। जो यहाँ पर हालात हर जगह पर डिस्टर्ब हुए हैं वो वापस अपनी जगह पर वापस आएंगे। लोगों को दोबारा से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। जो फाइनेंशियली लोग डिस्टर्ब हैं उन लोगों के गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट की है हर लिहाज से, लेकिन ये है कि फिर भी जो लोग सफ़र हो रहे थे अब वो बाहर निकलेंगे, अपने कामों पे जाएंगे। बिल्कुल अजीब सी फीलिंग है। बहरहाल ये है कि जो इतना अर्सा ऑफिस नहीं आए तो वो तो ज़ाहिर है कोरोना की वजह से नहीं आ सके, तो ये भी ज़रूरी था। एनीवे अब ठीक फील हो रहा है। बच्चे तो बड़े खुश हैं। दुकानदारों ने भी कारोबार दोबारा खुलने पर सुख का सांस लिया और उम्मीद जाहिर की कि कारोबार एक बार फिर पहले जैसे हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि शॉप खुली है 3 महीनों के बाद, तो कस्टमर जो है वो बड़े बेताबी से बाहर लाइनों में वेट कर रहे थे और फिर जैसे जैसे बारी आती गई वो आते गए, उन्होंने भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा और हम भी इंशाल्लाह ताला पूरा ध्यान रखेंगे ताकि जो स्प्रेड हुआ है ना कोविड-19 वो ज़्यादा ना फैले। 100 दिन के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह काम खुला है तो अभी काफ़ी रौनक है, कस्टमर आ रहे हैं और हुकूमत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमको सब सेफ्टी तदाबीर में कैश की अदायगी न करना भी शामिल था, इसलिए सार्फिन को तमाम तर अदायगियाँ कैश कार्ड के साथ करना पड़ी। रेस्टोरेंट्स में भी समाजी फासले को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बैठने के लिए नशिस्तें कम कर दी गईं। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लोगों से अपील की है कि समाजी फासले के कवानीन पर बाकायदगी से अमल करें ताकि कोरोना को फैलने का मौका न मिल सके। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान BA-ME ग्रुप्स परेशानी और तन्हाई का शिकार रहे। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की कोविड-19 सोशल स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस के दौरान मौत और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात ने सफ़ेद फार्म अफराद की निस्बत दीगर अक़लियतों को ज़्यादा मुतासर किया। BA-ME ग्रुप्स के अफराद ने बताया कि वबा के दौरान उनकी जहनी सेहत इंतहाई बिगड़ गई, जबकि सफ़ेद फार्म अफराद में से सिर्फ 1/3 ने यह शिकायत की है। वबा के दौरान खुदकुशी के ख्यालात ने अक़लियती के ग्रुप्स के 15 से 18% अफराद को मुतासर किया, जबकि सफ़ेद फार्म अफराद में यह शरह 13% थी। BA-ME ग्रुप्स के तकरीबन 23% अफराद तन्हाई के एहसास में मुब्तला रहे, जबकि सफ़ेद फार्म अफराद में यह शरह 17% रही। अक़लियती ग्रुप्स के 8 से 12% अफराद ने नफसियाती और जिस्मानी तौर पर हरासा होने का बताया, जबकि सफ़ेद फार्म अफराद के ग्रुप में यह शरह 5 से 6% बताई गई। 57% अफराद ने बताया कि उनकी जहनी सेहत अब इस सतह पर है जिस पर कोविड-19 की वबा फैलने से पहले थी, लेकिन 1/3 का कहना है कि जहनी सेहत मामूल से बदतर है। अक़लियती ग्रुप्स के 1/4 अफराद ने बेरोजगारी पर फिक्रमंदी का इजहार किया, जबकि सफ़ेद फार्म अफराद में हर 8 में से 1 ने बेरोजगारी पर परेशानी दिखाई। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत पर एतमाद में 14% कमी हुई, जबकि वबा से निमटने में हेल्थ सर्विस की अहलियत पर एतमाद भी 12% कम हुआ। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। मारूफ माहिर कानून आमिर मंजूर का कहना है कि कोरोना वायरस और ब्रेग्जिट की वजह से इमिग्रेशन कवानीन में लोगों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तालिब इल्मों के लिए ये अच्छा मौका है कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके 2 साल का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। लंदन में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम साबरी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के निज़ाम को तहस नहस कर दिया। जहाँ पे दूसरे शोबे भी मुतासर हुए, वहाँ पे गैर कानूनी तारीक़िन वतन जो यहाँ पर मौजूद है उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर कानूनदान आमिर मंजूर साहब। उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन सी मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं। देखें, सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियली लोगों ने सफ़र किया, चूँकि जो यहाँ के जो शहरी थे वो तो सफ़र कर रहे थे, लेकिन जो गैर कानूनी लोग यहाँ पे मुकीम थे उनके लिए ज़ाहिर आपको पता रोज़गार या उनको काम की इजाज़त नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए उन लोगों के लिए। अभी आजकल फ़ी वेवर की एप्लीकेशंस है, उसके थ्रू उनको फ़ीस माफ़ की और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए उन्होंने इजाज़त दी है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी एप्लीकेशंस विदाउट होम ऑफिस फ़ी फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो लोग जो कि 18,600 की कैटेगरी की रेंज में जा रहे थे और जिनकी जॉब्स चली गई हैं, वो उनका वो माली जो है वो पूरे नहीं कर रहे, तो उसके लिए हुकूमत कोई उनको एडवांटेज दे रही है या कोई रियायत दे रही है? जी बिल्कुल। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर आपकी इनकम जो है वो इस टाइम पीरियड के दौरान जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक अगर आप पूरी नहीं कर सके, अगर तो आप फरलो के अंदर चले गए हैं, तो वो 80% जो आपको इनकम मिलती रही है वो उसको 100% ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थे तो ये जो टाइम पीरियड है ये सारे का सारा डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। और तीसरा, इसमें अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आपने जब काम छोड़ा था तो जो उससे इमीडिएटली बिफोर दैट जो आपकी जितनी भी इनकम थी वो इसको कंसिडर करते हुए 18,600 को वो कैलकुलेट करेंगे। वो ब्रेग्जिट और कोरोना इसके दोनों के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो 15 साल से यहाँ पे या जिनकी एप्लीकेशन किसी वजह से पेंडिंग है या जिनके अपील्स आई हुई हैं, तो उनके लिए कोई चांस बन सकता है? देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब तक आप अथॉरिटीज से कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको लीव नहीं मिलेगा। घर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको चाहिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान जब आपको पता है कि ब्रेग्जिट है और फर्दर जो है यहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको चाहिए कि होम ऑफिस से कांटेक्ट करें और इस टाइम पीरियड में जब आपको फाइनेंशियल जो हेल्प मिल रही है, फीस पे करने की जरूरत नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप फौरन इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशंस मूव करें ताकि इस सारे प्रोसेस का आपको फ्यूचर में फायदा हो सके। तो वो लोग जो कि काफ़ी अरसा से बरतानिया में मुकीम है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई ऐसी स्कीम आ जाए तो उससे पहले अपने आप को होम ऑफिस में रजिस्टर कर लें? जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप घर में बैठे हैं, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं की, तो होम ऑफिस की किसी भी स्कीम का या किसी भी चीज का फायदा नहीं ले सकते। अगर आप हिस्ट्री देखें तो 2007 में इन्होंने एक एमनेस्टी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके तहत जितने भी फेल्ड एप्लीकेंट्स थे, चाहे वो असाइलम सीकर्स थे या ह्यूमन राइट्स के थे,
ان کو ہی ریلیف ملا تھا. لیکن جن لوگوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی تھی وہ الٹیمیٹلی کسی بھی کیٹیگری یا کسی بھی ایمنسٹی کا حصہ نہیں بن سکے تھے. بہت سے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سیاسی پناہ کی اپلیکیشن، تو ایٹ دا مومنٹ اگر کوئی آدمی سیاسی پناہ کی اپلیکیشن موو کرتا ہے تو اس کے کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اپنے کنٹری کے اندر اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی پولیٹیکل، ریلیجیس یا کسی اور بیسس کے اوپر، اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ واپس آئے گا تو ہی کین بی پروسیکیوٹڈ یا پروسیکیوشن کا حصہ بن سکتا ہے، وہ یہاں سے اسائلم کلیم کرے گا، اور جتنا اگر میرٹ والا کیس ہے تو ہوم آفس آف کورس جو ہے وہ اس کو دے گا. 2018 کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو اراؤنڈ ابو دین 18,000 اپلیکیشن 1 ایئر کے اندر ہوئی تھی، جس کے اندر سب لوگوں کو ریفیوجی سٹیٹس یا اس سے ریلیٹڈ جو کیٹیگریز تھیں ان میں ویزا دیا گیا تھا. لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ کیا اور آپ کس حد تک ایویڈنس دے